हाँ देखो, तो आज आपका लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था मिरर फॉर्मूला के ऊपर, याद होगा सबको। टेस्ट भी ले चुके हैं आपका, और टेस्ट में बढ़िया स्कोर भी किए तुम लोग। तो लाइट का हम लोग मिरर फॉर्मूला तक, मिरर का इमेज वगैरह सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब समझा चुके हैं आपको हम, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता चुके हैं, मिरर फॉर्मूला का मतलब समझा चुके हैं, वी का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब समझा चुके तरीके से आपको। तो रिफ्लेक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन का पार्ट। हेडिंग दो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को लास्ट में करवाएंगे लेंस के साथ को। रिफ्रैक्शन, so when the light changes its medium, when the light changes its medium, then this process is called refraction. Then this process is called refraction. Point number one, refraction occurs. Refraction occurs when light travels from rarer medium to denser medium. Refraction occurs when light travels from denser medium to rarer medium, or rarer medium to denser medium, or rarer medium to denser medium. Point number two. Point number two. In refraction process, in refraction process, in refraction process, the speed of light changes. The speed of light changes. उसके नीचे पॉइंट नंबर ए, सेकेंड पार्ट का ए पार्ट, पॉइंट नंबर ए. When the light travels from rarer to denser, when the light travels from rarer to denser, the speed of light decreases. When the light travels from rarer to denser, the speed of light decreases. Point number B. When the light travels from denser to rarer medium, when the light travels from denser to rarer medium, speed of light increases. Speed of light increases. Point number 3. During the change in medium of light, during the change in medium of light, frequency remains constant. During the change in medium of light, frequency remains constant. Point number 4.
when the light when the light travels from one medium to another medium, when the light travels from one medium to another medium, when the light travels from one medium to another medium, then it gets bended away or towards the normal. Then it gets bended away or towards the normal. Then it gets bended away or towards the normal. Bended away or towards the normal. Or towards the normal. 105. From rarer to denser medium, from rarer to denser medium, light get light gets bended towards the normal. क्या light bends towards the normal ऐसे light bends towards the normal. गेट हटा दो वहां पे. From rarer to denser medium, light bends towards the normal. 105, 6. Sorry. From denser to rarer medium, from denser to rarer medium, light bends away from the normal. From denser to rarer medium, light bends away from the normal. Light bends away from the normal. Final 7. Normal means a perpendicular line. Normal means a perpendicular line for the plane surface or from the separation of the media. ऐसे लिखो. Normal means a perpendicular line from the separation of media. Normal means a perpendicular line from the separation of media. Point number 8. Media means medium. अब जो रेयर डेंसर की बात कर रहे हैं उसी मीडियम की बात कर रहे हैं. Point number 9. The maximum speed of light is approx 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Approx 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Or we can say 30 crore meter per second. एक सेकेंड में लाइट 30 करोड़ मीटर ट्रेवल कर सकता है अप्रॉक्स. एग्जैक्ट वैल्यू 2.99 होता है, और हम इसको अप्रॉक्स 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि क्वेश्चन जब आएगा तो इसी को पुट अप करें. नाउ to define the rarer or denser medium, to define the rarer or denser medium, to define the denser or rarer medium, the speed of light will be the measurement value. Means
the medium which is very close to the medium, same paragraph change, the medium which is very close to speed of light, the medium which is very close to speed of light will be called as rarer medium. The medium which is very close to a speed of light will be called as rarer medium, and other is called denser medium. And other is called denser medium. तो लगभग आपको सारा पॉइंट समझा चुके हैं, कुछ पॉइंट बचेगा तो हम पढ़ाते जाएंगे, और जो पॉइंट मुझे लगे छूट गया उसको उस टाइम में लिखवा देंगे आपको हम। तो हो सके 2-3 सेंटेंस के लिए एक लाइन छोड़ ही देना वहाँ पे, ताकि मुझे कुछ याद आए एक्स्ट्रा लिखवाने के लिए ना, तो एक पैराग्राफ छोड़ दो एटलीस्ट वहाँ पे बनाकर, ताकि मुझे याद आएगा तो लिखवाते जाएंगे आपको साथ साथ। वैसे तो मैंने सारा कुछ लिखवा दिया आपको लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, बट इन द केस मुझे कुछ लिखवाना होगा, लाइक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखवाएं तो अलग से लिखवा देंगे, स्नेल्स लॉ अलग से ही करवा देंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ समरी टाइप कुछ मुझे याद आएगा उस टाइम पे तो लिखवा देंगे। तो 4, 5 या 6 लाइन छोड़ दो वहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा और लिखवाना लिखवा देंगे आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते चैप्टर को पढ़ना। द चैप्टर नेम इज, अरे बोलो भाई, हाँ लाइट, हाँ सॉरी टॉपिक, द टॉपिक नेम इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं दोबारा से। अब जितना पॉइंट लिखवाएं उसमें आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर में एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही कम होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर, अच्छा उसको भी लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस ओनली, द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस ओनली, the direction of light changes only when the speed of light changes. The direction of light changes, direction path of light कर लो, एक perfection वहाँ पे आ जाएगा। Direction of path of light changes only when, the direction of path of light changes only when the speed of light changes. Only when the speed of light चेंजेस, ठीक है। अब कुछ लिखवाते रहेंगे बीच में ऐसे, समझते हैं। दोबारा बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका अगर कोई लाइट अपने पाथ को चेंज करे, ठीक है, कोई भी लाइट अपने पाथ को चेंज करने कहने का मतलब ये हुआ अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। और डायरेक्शन चेंज कब होगा? जब उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा? चेंज करेगा। उसी से हम दो टर्म को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर पाते, फर्स्ट इज कॉल्ड रेयर एंड अदर इज कॉल्ड, और ये कैसे पता कर पाएंगे कौन सा रेयर कौन सा डेंसर? तो ये चेक करो उस मीडियम में किसका लाइट का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू किसके क्लोज है। जिसका क्लोज होगा स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, अगर सपोज करो मान लो ऐसे बोल रहे हैं ना कि मान लो N1 मीडियम है या आपका N2 मीडियम है, मैंने बोला इसमें स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं 2.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मान लो N2 में जो आपका है वो आपका है 2.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो वैल्यू क्लोज होगा, सबसे क्लोज होगा, उसी को बोलेंगे रेयर, और जो वैल्यू आपका क्लोज नहीं रहा उसको बोलेंगे डेंसर। तो मुझे पता है इन दोनों में 2.75 या 2.80 कौन ज्यादा बड़ा हो गया? 2.80, ये क्लोज है, तो बोलेंगे N2 इज द रेयर मीडियम एंड N1 इज द डेंसर मीडियम। ये एक तरीका है डेंसर और रेयर को पहचानने का, डिफरेंशिएट करने का। हालांकि आपको ज्यादातर वैल्यू गिवन होता है, याद रखना होता है आपको चीजों को। और जैसे ग्लास की बात करें तो ग्लास में 1.33 होता है और एयर का 1 होता है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू आपको याद भी होना भी चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो जो अगर मैंने बोला कि ऐसे एन का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, एन का वैल्यू 1.5 हो गया, तो ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
याद रखना वैल्यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से पहचानते हैं हम लोग कि कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम। क्योंकि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, इसको पॉइंट बनाकर एग्जाम में लिख तो सकते हो, बट कभी पहचानने का तरीका आपका स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू नहीं आता एग्जाम में, वो आता किसके थ्रू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू पहचानने आता है। तो आपको इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए पहचानने के लिए कि एन वैल्यू कितना है, जिसका ज्यादा होगा कम होगा तो क्या डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे आपका रेयर मीडियम है कि आपका डेंसर मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द की, जिससे हम समझ सकते हैं आपका कौन सा वैल्यू रेयर होगा, कौन सा वैल्यू डेंसर होगा। चमका ना। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं चीजों को बताना और उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहले रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है। मैंने बताया रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई लाइट अपना मीडियम चेंज करता है। अगर लाइट मान लो इस रूम में ट्रेवल कर रहा है तो इस रूम में सिर्फ क्या एयर है, क्या मीडियम यहाँ पे चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे। अब अगर मान लो यहाँ पे पानी भी होता तो लाइट पहले एयर में था, कहाँ चला गया, पानी में चला गया। क्या तुम्हें पानी के अंदर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या। अगर मान लो मग में तुम एक कॉइन लेकर आए, पानी भर दिए, क्या कॉइन अंदर तुम्हें दिख रहा है क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखने का मेन रीजन क्या है, लाइट। क्या आपका रीजन है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है लाइट पानी के अंदर गया होगा, तभी देख पा रहे हैं ना हम लोग। अगर लाइट जहां जाएगा वही हम चीजों को देख पाएंगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो हमारी सोच वहां तक पहुंचनी चाहिए, लाइट का पाथ वहां पहुंचना चाहिए। और जैसे जहां जहां लाइट जाएगा तुम्हें ऑब्जेक्ट वहां वहां दिखेगा। जैसे मान लो तुमने रखा है ऐसे, बात समझना, तुमने कॉइन रखा था एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, बट लाइट यहां पहुंचा तो कॉइन को यहां दिखा रहा है, तो तुम यही देखोगे। जहां लाइट रहेगा ऑब्जेक्ट वही दिखेगा। और लाइट कहां से निकलता है हमेशा, ऑब्जेक्ट से। कहां से निकलता है हमेशा, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, तुम्हारी आंखों में पहुंचेगा तब तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा। बट ऑब्जेक्ट से कैसे निकल रहा है, ऑब्जेक्ट तो वहां सोर्स ही नहीं। क्या 5 रुपए कॉइन में कोई लाइट है क्या, तो ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे निकल रहा है। कहने का मतलब वहां पे लाइट कहीं सोर्स होगा, लाइक सन की लाइट, मान लो सन का लाइट आया होगा, उस कॉइन पे टकराया होगा, टकराकर थोड़ी तुम्हारी आंखों पे आया होगा। तो हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए चीजों को थोड़ा सिंपल करने के लिए समझते क्या है कि लाइट हमेशा कहां से निकलेगा। अगर ऐसा तुम्हारा सोच रहेगा तो क्वेश्चन करना या फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लाइट हमेशा निकलता है आपका ऑब्जेक्ट से। तो कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 5 रुपीज कॉइन के पास अपना एक सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा नहीं है। सन के पास सोर्स है, सन एक सोर्स है लाइट का, तो वहां से लाइट आया होगा, कॉइन पे टकराया होगा, टकराकर फिर वापस हमारे आंखों पे आया होगा। तो लाइट का रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या समझा आपने, कि जब भी कोई लाइट अपने पाथ को ट्रेवल करता है, पाथ पे रहता है, तो उसका लाइट का पाथ का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब उसी चीज को पढ़ने वाले कि कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, लाइक अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जानने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता होना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा कि कौन सा आपका रेयर वैल्यू है, कौन सा आपका डेंसर वैल्यू। क्लियर ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेक करो, अगर वो कम रहा तो बोलेंगे रेयर मीडियम। कौन सा बोलेंगे, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा रहा तो बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब बात समझना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है जो बोलता है लाइट को क्रॉस करना पाथ में, वहां भीड़ भाड़ समझो, ऐसे भीड़ भाड़। बताओ भीड़ भाड़ ज्यादा रहा तो लाइट क्या सेम डायरेक्शन में जाएगा, लाइट डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, ऑब्वियसली बात है। लाइट हमेशा, जैसे करंट को के बारे में पता होगा ना, कि करंट हमेशा उसी पाथ को फॉलो करता है जहां रेजिस्टेंस कम होता है ना। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा करंट चाहेगा उसी पाथ को फॉलो करे ताकि मैक्सिमम करंट को फ्लो कर सके। ठीक है, लाइट भी ऐसा ही है, वो चाहता है हमेशा कहां जाने के लिए, रेयर मीडियम। कहां पे, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा तो लाइट बहुत तेजी भागेगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कहने का मतलब भीड़ भाड़ भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कहने का मतलब भीड़ भाड़ भी। तो तुम बताओ स्पीड मेरा दौड़ने कहां ज्यादा रहेगा, भीड़ भाड़ में कि खाली जगह में। तो खाली जगह में रेयर। तो तुम बताओ स्पीड ऑफ लाइट कहां ज्यादा रहेगा, रेयर में कि डेंसर में। रेयर कहने का मतलब कम भीड़ भाड़, मतलब भीड़ भाड़ नहीं, खाली जगह। और डेंसर कहने का मतलब हुआ भरा हुआ जगह, भीड़ भाड़ की जगह। तो तुम बताओ कि भीड़ भाड़ में तुम आसान दौड़ पाओगे कि खाली जगह दौड़ पाओगे। तो रेयर को बोल रहे हम खाली जगह, डेंसर को बोल रहे भीड़ भाड़। तो अब बताओ यहाँ पे
कि खाली जगह में स्पीड वहां ज्यादा होगा कि आपका भरे भीड़ भाड़ में? तो बताओ डेंसर में स्पीड ज्यादा होना चाहिए कि रेयर में? अब तुमको लॉजिक समझा। डेंसर कहने का मतलब तुम्हारे लिए समझने के लिए बोल रहे हैं भीड़ भाड़। वो कौन बताएगा? उसका इन का वैल्यू बताएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला ग्लास का जो वैल्यू होता है, बात समझना से बच्चे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है 1.5, ठीक है। वाटर का होता है आपका 1.3, कितना होता है 1 या इसको कभी हम लोग 4/3 भी लिख लेंगे, ठीक है। एयर का जो आपका होता है एग्जैक्टली आपका 1 ही होता है, लगभग 1.003 होता है, बट 1 मान के चलेंगे। ये सब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। नाउ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये थर्ड वन मान लो। तो मैंने बोला फर्स्ट और सेकेंड कंपेयर करे, बताओ मुझे कौन सा रेयर कौन सा डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कम होगा रेयर, जिसका ज्यादा होगा वो। तो मुझे बताओ ग्लास और वाटर में कौन सा रेयर कौन सा डेंसर? वाटर इज रेयर एंड ग्लास इज। तो मुझे ये बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा रहेगा, वाटर में ग्लास में? वाटर में, क्योंकि रेयर मीडियम हो गया हमारा। हम कंपेयर किसी को कैसे भी कर सकते हैं, हमेशा एयर ही रेयर है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग कहीं मत रखना। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट रेयर और डेंसर को डिफाइन करता है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट को मान के चलो। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट जहां पे ज्यादा होगा दैट इज रेयर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जहां पे कम हो जाएगा दैट इज डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म ऐसे बोलेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा रेयर। और डेंसर को अपने समझने के लिए खुद के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, भीड़ भाड़, और रेयर को बोल रहे हैं हम लोग खाली जगह। तो खाली जगह में दौड़ना आसान तो लाइट का स्पीड भी ज्यादा, भीड़ भाड़ में दौड़ना मुश्किल तो लाइट का स्पीड भी कम। तो ऐसे समझ के बात को, ऑब्वियस बात है, बात समझना। तुम खाली जगह दौड़ रहे थे, तो बात करो, तुम खाली जगह दौड़ रहे थे, तुमको भीड़ भाड़ दिख गया, तुम क्या करोगे? सेम रास्ता भागोगे कि चेंज करोगे? चेंज करोगे ना। तो चेंज तुमने कब किया? जब खाली से भीड़ भाड़ में एंटर किए। इसका मतलब लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो वहां भी डायरेक्शन। अब तुम भीड़ भाड़ में थे, खाली जगह एंटर किए, तो तुम क्या करोगे? अब फिर से पाथ को चेंज करोगे, ऐसा जगह जाओगे जहां तुम्हें दौड़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। आई बात समझ में? तो 2 बार लाइट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, कब? जब वो भीड़ भाड़ से खाली में जाएगा या खाली से। बट भीड़ भाड़ में तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, भीड़ भाड़ में ऐसे निकलते जा रहे हैं हम लोग, आप समझे। खाली जगह में कोई दिक्कत नहीं, सीधे चलते जा रहे हैं हम लोग। मतलब कहने का, अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल करना है तो लाइट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, चाहे वो भीड़ भाड़ भी क्यों ना चल रहा हो। अगर लाइट डेंसर मीडियम में था, डेंसर में ही रह गया, पानी में था, पानी के अंदर ही रह गया, तब भी उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ना कि रिफ्रैक्शन बोलेंगे। चमका? जब तक लाइट अपने मीडियम को चेंज ना करे तब तक वो आपका रिफ्लेक्शन है, जैसे लाइट मीडियम को चेंज करेगा तब आपका वो रिफ्रैक्शन है। अब चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे चीजों को अच्छे समझना है, सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब मेरे ख्याल से होप करते हैं आपको अच्छे समझ में आ भी क्या होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स समझना है, कुछ आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे समझाएंगे कैसे होता है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, बताओ हम कितने लेक्चर से पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे चैप्टर क्यों? ताकि मुझे पता है लाइट चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड में कितने भी अल्टीमेट क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बट मुझे इतना भरोसा रहेगा तुम लोग पक्का कर लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तुम्हें समझा दिया अच्छे से, खासकर बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है ना। अगर और अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके साथ ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। और इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा होते रहना चाहिए। जिस दिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो चैप्टर भी तुमसे बहुत दूर निकल जाएगा। ट्राई करो कि हर 10 दिन पे एक चैप्टर को रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने से क्या होता है कि आदत होती है पढ़ते रहने की। जितना तुम्हारा आदत पढ़ने का रहेगा, कोई तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता, याद रखना। ये 15-20 लाख बच्चे बोर्ड एग्जाम हर साल लिखते हैं, तो 15-20 लाख में तुम्हारा कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो अच्छे पढ़ने वाले। नहीं अच्छे पढ़ने बहुत सारे बच्चे हैं, बट तुम उनको बीट करने का ट्राई करो। और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं कि तुमको नहीं बोल रहे 24 घंटा पढ़ने बोल रहे, एकदम काम होकर शांति से प्यार से पढ़ो। डेली का तुम 1-2 घंटा भी निकालते हो खुद से रिवाइज करने के लिए, बहुत है, मोर देन इनफ है सर, बहुत ज्यादा है आपके लिए। इतना तो कर पाओगे ना। हाँ, बोर्ड एग्जाम कर जब पास आओगे थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना, बट फिलहाल इस बात का ध्यान रखना, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना आपको हम डीबीबी सॉल्व करने देंगे सारा प्रैक्टिस होना चाहिए, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना कॉन्फिडेंस आएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हम लोग। ये पोर्शन किसी को नोट डाउन करना तो कर सकते हो। मान लो ये सेपरेशन है, बाउंड्री है, जहां पे 2 मीडियम डिवाइड हो रहे हैं। एक का नाम दिए एयर, एक का नाम दिए वाटर। एयर का एन वैल्यू कितना होता है आपका 1, वाटर कितना होता है 1.33 या फिर 4/3, ठीक है ना।
सबसे पहले क्या करना है, जरा स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पे जब लाइट कहीं से आएगा, लाइट यहाँ पे आया, जैसे लाइट आएगा जिस पॉइंट पे सेपरेशन बाउंड्री जिस पॉइंट पे टकराएगा वहां ड्रॉ करो एक नॉर्मल लाइन। नॉर्मल के मतलब सेपरेशन बाउंड्री के परपेंडिकुलर, आपको सब कुछ समझा चुके पहले ही, है ना। पहले क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल लाइन, ठीक है। देखो अब लाइट आपका पहले मूव कर रहा है कहां पे, बात समझना। ये आपका एयर है, आपका रेयर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपका, चीजों को अच्छे समझना। मैंने बोला कि रेयर का मतलब क्या होता है आपका, खाली जगह, और डेंसर मतलब क्या होता है, तो खाली जगह स्पीड ज्यादा होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, तो स्पीड कम होगा, डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। अब समझो बात को, लाइट आ रहा था ऐसे, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, तो अगर मान लो मैंने बोला कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, दिस कुड बी द पाथ ऑफ लाइट, लाइट का पाथ होना चाहिए था, बट लाइट पाथ को चेंज कर दिया। कहां चेंज किया, तो बोलेंगे टूवर्ड्स नॉर्मल। कहां चेंज किया, टूवर्ड्स नॉर्मल। और आपको ये बात तो पक्का पता होगा कि जब भी कोई एंगल निकालना हो, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। कहां से, दुनिया के लाइट किसी कॉर्नर बैठा हो, बट एंगल जब भी निकालना हो तो नॉर्मल से चेक करो कितना एंगल है, तो इसको बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एंगल आर। इस आर को बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस आई को बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि लाइट ने मीडियम चेंज किया तो रिफ्रैक्शन टर्म आएगा। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देखिए अच्छे समझे, यहाँ पे अगर लाइट इस पाथ पे जाता तो हम बोलते हैं अगर ये आई तो ये भी पूरा आई होता, होता नहीं होता, चमका नहीं चमका, ये पार्ट अच्छे समझो, ये पार्ट आई होता तो ये भी पूरा कितना होता, आई। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट यहां से इतना बेंड कर गया, ऐसे इतना बेंड किया ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, अरे सब बच्चे बोलो क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ। तो मैंने पूछा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे करेंगे, तो हमें लिखना है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो बोलेंगे इतना ही है ना, बात समझना अच्छे से। एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात की जाए, क्या ये वाला एंगल डेविएशन है, ये तो बताओ, चेक करो सब बच्चे बोलो, यही है क्या, तो ये वाला डेविएशन कितना होगा, बोलेंगे पूरे में से आर को माइनस कर दो, पूरा में से आर माइनस कर लेते, कोई दिक्कत। तो एंगल आई में से एंगल आर को माइनस करे, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और जिसका मतलब किसके लिए, रेयर टू डेंसर के लिए, सबके लिए नहीं। जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी उस टाइम की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंसिडेंस प्लस रिफ्रैक्शन क्या करना है हम लोग को, माइनस करना। चमका नहीं चमका, तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। नाउ अगर वही रे ऑफ लाइट, अगर वही रे ऑफ लाइट आपका डेंसर से एंटर किया रेयर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, पहले रे ऑफ लाइट जाएगा, मान लो ये गया रे ऑफ लाइट आपका, देख लो ये गया आपका रे ऑफ लाइट। मैंने बोला जहां पे लाइट टकराता है वहां पहले क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ड्रॉ किया नॉर्मल लाइन, कोई दिक्कत यहाँ पे। नाउ अब ये आपका डेंसर मीडियम, ये आपका, बताओ भीड़ भाड़ से खाली जगह, क्या स्पीड ऑफ लाइट फिर चेंज करेगा, इसे बताओ, स्पीड ऑफ जब चेंज करे घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे जब रेयर से डेंसर मीडियम एंटर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, एंड जब डेंसर से रेयर मीडियम एंटर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। क्या लॉजिक ले रहे हैं आप बच्चों को। तो मैंने बोला कि ऐसे जाना चाहिए था, दिस कुड बी द पाथ ऑफ लाइट, ऐसे जाना चाहिए था इसको, बट गया नहीं, तो कहां चला गया, यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल गया, तो यहां कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द, ये आपका पाथ ऐसे निकल गया। नाउ फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, क्या इसको एंगल आई बोलते, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस आने वालों को ही बोलते हैं। तो क्या ये एंगल पूरा का पूरा एंगल आर है क्या, अरे बोलो चमका नहीं चमका,
लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे नहीं जाके इतना बेंड किया। देखो चमको, ऐसे जाना चाहिए था, ये इतना बेंड कर गया। क्या इसको डेविएशन बोल दे? बताओ मुझे, क्या इसको हम डेविएशन बोल दे? क्या यही आपका डेल्टा है? बोलो कोई दिक्कत? अब इस पर डेल्टा निकालने बोले, बताओ। डेल्टा का मतलब पूरे आर में से ये अगर आई है, बात समझना, अगर ये आई तो ये भी कितना होगा? तो पूरे आर में से आई को माइनस कर ले क्या? तो यहां क्या हो गया? डेल्टा इक्वल टू एंगल आर माइनस एंगल। बोलो चमका, कोई दिक्कत? तो मैंने बोला कि जब लाइट आपका रेडियल टू डेंसर जाएगी तो डेविएशन होगा एंगल आई माइनस एंगल आर। जब लाइट आपका डेंसर से रेडियल जाएगी तो क्या हो जाएगा? लाइट आपका आर माइनस आई। ठीक है, और इसको नॉर्मल बोल रहे हैं, बोलना मत, दिस इज नॉर्मल रे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सेपरेशन और बाउंड्री या मीडियम सेपरेशन, जो भी बोल रहे हो आप बोल दो। क्या यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है? एनीवन डाउट है? दोबारा पूछ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। लिख लो फिर, कॉपी डाउन। अगर मैंने बोला दिस द सेपरेशन और बाउंड्री, ठीक है, दोबारा ध्यान सुनो यहाँ पे। अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो पहले क्या करना आएगा? जहाँ पे क्या करना, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। अगर ये मान लो डेंसर है, ये मान लो रेयर है, क्या होगा? अवे फ्रॉम द, तो ऐसा जाएगा लाइट। अब ये दिमाग में फिक्स मत कर लो कि ऊपर से नीचे आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा नहीं होता है। डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसलिए उल्टा करके दिखाया। आया बात समझ में? और अगर वही लाइट ऐसा रहा, ये रेयर ये डेंसर, यहाँ लाइट आया तो क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स। चीजों को कॉन्सेप्चुअल सीखो, यहाँ पे रट्टेबाजी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो बात समझो यहाँ पे क्या हुआ। देखो, अगर रे ऑफ लाइट रेयर में था, स्पीड मान लो जो भी होगा, तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा, रेयर में कि डेंसर में? रेयर में। इसको मान लो स्पीड v1, इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत? v1 v2 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चल गया कि हाँ स्पीड दोनों अलग अलग है। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, अब ये बताओ क्या मीडियम भी अलग हो गया क्या? तो इसको n1 मान ले, इसको क्या मान ले? कोई दिक्कत? अरे तो बोलो। अब बताओ लैम्डा के वेवलेंथ होगा क्या? तो बताओ वेवलेंथ तो चेंज करना चाहिए, तो इसको लैम्डा 1, तो इसको क्या मान ले? ये तीन क्वांटिटी यहां भी चेंज करा, तीन क्वांटिटी यहां भी चेंज करा, सुनो। चमका नहीं चमका? अच्छा बताओ, तो सेम क्या रहना चाहिए? लिखवाया था आपको, फ्रीक्वेंसी। क्या सेम रहना चाहिए? कभी कोई भी लाइट, जब तक सिंगल लाइट की बात कर रहे हैं, सन की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, बल्ब की बात करें, अगर एक ही लाइट की बात करें तब तक फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करेगा। फॉर अ सिंगल लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, जहां तक लाइट पहुंचेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइट के लिए सेम रहता है हमेशा। अगर सन तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है और धरती माता के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ हमारा उस लाइट का फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या होगा? सेम। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का भी है कि अगर लाइट मीडियम चेंज करता है तो क्या सेम रहता है, तो क्या आंसर करोगे? फ्रीक्वेंसी। डिफर क्या हो जाएगा? तीन पोर्शन, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड मीडियम ऑफ लाइट। एंड तो चेंज क्या रहेगा? सेम क्या रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चों को पता नहीं चल पाता, इसे आपको बोल रहे हैं चीजों को ध्यान समझा करो। कुछ बातें यहाँ पे हैं जो मुझे करनी है, आपको समझाना है। कि मैंने बोला कि मान लो अगर हम लिख रहे हैं n12 या मैंने बोला n21, इसका कहने का मतलब क्या होगा? ठीक है, इस चीज का लिखने का मतलब क्या होगा? देखो, इस चीज का लिखने का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना? अरे बोलो, इन मीडियम 2, मीडियम। और इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा? 1। अच्छा समझना, n12 कहने का मतलब होता है आपका 12 का मतलब 21, 12 का मतलब, तो मतलब 21 का मतलब क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। चमका? अरे कोई दिक्कत? अब ये n12 n21 का मतलब क्या, उसको भी समझ लो। अब आप समझना कैसे लिखेंगे। n12 कहने का मतलब हुआ n1 डिवाइडेड बाय
दैट इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई, चमका नहीं चमका? क्या ये पोर्शन में किसी बच्चे को डाउट है? पहले मैंने चीजों को पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, फिर थोड़ा शॉर्ट किए, फिर पूरा शॉर्ट कर दिया। आपको याद ऐसे रहना चाहिए अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है ना? N12 कहने का मतलब क्या हुआ? N1 डिवाइडेड बाई, और जिसका मतलब उल्टा करना, V2 डिवाइडेड बाई। अगर मैंने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि बताओ लाइट का स्पीड मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में कितना है? मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालता कहां रहता है? हमेशा वो नीचे रहता है ना, तो नीचे कर दिए। ये लॉजिक है। लाइट का स्पीड मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में कितना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा कि कहां रहेगा आपका, तो V1 बाई V2, खत्म हो गया आंसर हमारा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे किसी बच्चे को दिक्कत यहां पे है, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। सब बच्चे बोलना यहाँ पे क्या क्या सेम रह गया? फ्रीक्वेंसी सेम रह गया, बाकी 3 क्वेश्चन। मुझे ये बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 9 के अकॉर्डिंग? सब बच्चे बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को v मान ले क्या, और लाइट का डिस्टेंस को लैम्डा मान ले क्या, तो लैम्डा बाई टी हो गया क्या, क्या फिर ये लैम्डा इंटू 1/t हो गया क्या? 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्या? तो v इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया क्या? तो एफ इक्वल टू v बाई लैम्डा हो गया क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? तो एक काम करो, हम फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मीडियम के लिए एफ क्या हो जाएगा? v1 बाई लैम्डा 1। एफ क्या होगा? v1 बाई, पता सेकेंड मीडियम के लिए एफ कितना हो जाएगा? v2 बाई लैम्डा 2। तुम बोलोगे सर वहां v1 v2 कर रहे हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कर रहे हो, बट तुम एफ कर रहे हो, क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम। फ्रीक्वेंसी इज, और फ्रीक्वेंसी सेम है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे हम, एफ इक्वल टू v1 बाई लैम्डा 1, एफ इक्वल टू v2 बाई। तो काम करते इसको ही बराबर कर लेते। बताओ क्या क्या बराबर करना? क्या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दोनों मीडियम के लिए? अरे जो फ्रीक्वेंसी रेयर में वही फ्रीक्वेंसी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी रेयर कितना आया था? v1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू v2 बाई, अरे बोलो कोई दिक्कत? इसको फिर से रीअरेंज कर ले, देखो इसको नीचे करो उसको ऊपर करो, कर ले क्या? v2 को नीचे लाओ, लैम्डा 1 को, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? v1 बाई, सब बच्चे बोलेंगे, इक्वल टू लैम्डा 1 बाई, अब v1 और v2 किसके बराबर होगा? n2 बाई n1। चमका नहीं चमका? अरे बोलो कोई दिक्कत? सब बच्चे समझेंगे। v1 बाई v2 किसके बराबर हो जाएगा? v1 बाई v2 किसके बराबर होगा? n2 बाई, होगा कि नहीं होगा? तो वहां पुट कर दिए, तो ये एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। और ये सब किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी के बराबर। चमका? इसी पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। आपको प्रिपेयर कर दिए कैसे फॉर्मूला को डिराइव करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है। होप करते लॉजिक अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। एक और फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ, उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं पहले हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो स्नेल्स लॉ एक है, पढ़ना आपको। स्नेल्स लॉ कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम अगर चेंज करता है, ठीक है, मीडियम चेंज करने से क्या होगा? आपका बहुत सारा फैक्टर था, एक तो मीडियम चेंज करना, फ्रीक्वेंसी सेम रहना, लैम्डा चेंज करना, वेलोसिटी चेंज करना था ना। तो बोला कि वो मीडियम चेंज करेगा आपका, अगर तुम उसके बात समझना वजह यहाँ पे, ये एंगल आई एंगल आर, अगर इस एंगल को साइन के साथ, ठीक है, साइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा? वैल्यू बोलेंगे साइन आई बाई साइन आर, बट आपका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तभी आपका वैलिड है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करोगे तो वैलिड नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम करने का मतलब हुआ सोर्स ऑफ लाइट आपका एक ही रहना चाहिए। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट आता है। क्या आता है? ये जो कांस्टेंट आपका आंसर है ना, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, आपको नया टर्म तो है नहीं। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा कुछ ऐसा आएगा। बात समझना कैसे बोलेंगे हम, आपको जो याद करना है ऐसे याद करना है। n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। तो कहने का मतलब ये हो गया ना, साइन आई बाई साइन आर कितना हुआ? सब बच्चे बोलो, साइन आई बाई साइन आर कितना हो गया? n2 बाई n1। यही आपका कांस्टेंट था। आपको याद ऐसे रखना है, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। n1 क्या है? जहां से लाइट निकला उसको क्या बोलते हैं हम लोग? n1 क्या बोलते हैं?
तुम रात को कब सोई थी कल? तो फिर नींद क्यों आ रहा तुमको? आंख बंद होने को नींद आना बोलते हैं बेटा। अब तुम आंख खोल के सो जाएगी क्या? इतने स्मार्ट थोड़ी नहीं आप तुम। हाँ, तो N1 क्या है बात समझो। जहां से लाइट निकलेगा उसको बोलेंगे N1, जहां लाइट एंटर करेगा उसको बोलेंगे, लिख दे यहाँ पे। N1 का मतलब जहां से लाइट निकल रहा है। और N2 का मतलब जहां पे लाइट, अरे बोलो अगले बढ़ रहे क्या, जहां पे लाइट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। चमका सबको? अब इसके बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं, पहले 2 क्वेश्चन करवाते हैं, पहले लिख लो यहाँ। देखो लाइट कहां से निकलेगा हमेशा? वेरी गुड। और N1 करने का मतलब क्या हुआ? जहां से लाइट निकल रहा है। N2 का मतलब जहां पे लाइट एंटर कर रहा है। अब अगर मैंने बोला मान लो सेपरेशन है, बाउंड्री आपका, जहां पे मान लो आपका ये एयर हो गया और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या हो गया, वाटर हो गया, तो दिक्कत यहाँ पे, ठीक है? बात समझो यहाँ पे, ध्यान दो, इधर गेट लगाओ बोल रहे हैं, चुमो गया। देखो समझो यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आपका एक ईगल चील है आपका और ये मछली यहाँ पे है, तो मैंने बोला बताओ इसका मछली खाना है चील को, तो खा पाएगी नहीं खा पाएगी? मान लो एक जगह बैठ के रेस्ट कर रही है, तो मछली को चील कहाँ नजर आ रहा है, चील को मछली कहाँ नजर आ रही है? ऐसे क्वेश्चन को रिफ्रैक्शन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका पहले आपको सिखाएंगे कैसे इसका फॉर्मूला जनरेट करना चाहिए, ठीक है? चील और मछली क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको? 2 बातें ध्यान रखनी। क्या क्या ये जरूरी है? मान लो मैंने बोला 5 मीटर नीचे है, मान लो 5 या 10 मीटर, मान लो पानी के 10 मीटर नीचे आपकी मछली है और पानी से 100 मीटर ऊपर आपका चील है। तो चील ने मछली को देखा, मछली ने चील को देखा, दोनों क्या हो गया आपस में? झगड़ा। अरे बाप, क्या बच्चे बिगड़ रहे इधर। चील मछली प्यार क्यों करेगा? चुप। हाँ प्यार करेगा तो खाएगा। अगर कोई इंसान बोलना स्टार्ट करे कि मुझे चिकन से बहुत प्यार है, इसका मतलब वो आज खाने वाला है। एग्जैक्टली इसको भी मछली से बहुत प्यार है ना? बट इसको प्यार नहीं, नफरत। ये बचाना चाहता है अपने आप को, ये क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। तो तुम बताओ कि अगर ये 100 मीटर ऊपर है, 10 मीटर नीचे है, तो इस चील को मछली कहाँ दिख रही है? एग्जैक्टली तो 10 मीटर नीचे की कहीं और दिख रही है, कहीं और दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा है? इसको पहले फॉर्मूला निकालते इसका। देखो फॉर्मूला कैसे होगा। मान लो ये चील की आंखें हैं, किसकी आंखें हैं? कभी संदेह नहीं करते, चील की आंखें और बाजीराव का तलवार, कभी संदेह नहीं करते। मान लो आंखें हैं, चिपका देंगे अच्छे से, तुमको याद रखना, फिर बकवास दे दो। अब ठीक है, ये मछली आपका यहाँ पे, लाइट कहां से निकलेगा हमेशा? पहले तो नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कर ली ना। देखो बात समझना, तो लाइट निकलेगा ऑब्जेक्ट से। मान लो लाइट ऐसे निकला, ये डेंसर मीडियम था और ये कैसा मीडियम आपका है? तो मछली का है पानी में, कौन सा मीडियम? डेंसर। चील का है तो आपके एयर में क्या बोल दिए? मेरे बोल दिए। तो लाइट आया, मान लो ऐसे लाइट निकला यहाँ से और निकल के टकराएगा तो बाहर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल के सेम नॉर्मल। अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो कैसे जाना चाहिए इसको? अवे फ्रॉम। इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं हम लोग क्लैरिटी के लिए। देखो बात समझो, अच्छे समझना। इसका इमेज इसके आंखों को बनना चाहिए कैसे भी करके। मान लो रे ऑफ लाइट निकला, ऐसे गया, जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चला गया। देखो चेक करो, सेम तो नहीं है ना, थोड़ा सा और टेढ़ा करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब सही है बात समझना। मान लो जितना दूरी पे सेपरेशन दिख रहा है आपको, मान लो एक्स डिस्टेंस पे सेपरेशन हो रहा है, मतलब सेपरेशन पॉइंट पे एक्स पे टकराया नॉर्मल से दूरी पे। क्लियर? अब तुम बताओ, पहले जहां टकराता क्या वहां नॉर्मल ड्रॉ कर ले? कोई दिक्कत? क्या इसको एंगल आई बोल दे? क्या इसको एंगल आर बोल दे? अरे कोई दिक्कत? ये लाइट ऐसे गया, ठीक है, तो इसको अगर आगे बढ़ाए पीछे की तरफ तो क्या लाइट यहां मिलेगा? इस पॉइंट मिलेगा क्या? इसका मतलब ये वाला पॉइंट मछली इसको दिख रहा है। मछली थी नीचे बट चिल को मछली इतने डिस्टेंस पे दिख रहा है। आए बस में
तो ये आपका एंगल आई हुआ और ये आपका एंगल आर मान लेते हैं। तो तुम बताओ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से बता सकते हो तुम लोग। ये एंगल आई तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल, हो जाएगा क्या? अच्छा हमको यहाँ पे दो, ये ऐसे है ना, पैरेलल यहाँ पे दिख रहा तुमको, तो अगर पैरेलल लाइन है ऐसे मीट करे यार, बताओ यहाँ पे ये आई तो ये भी कितना हो जाएगा, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एंगल, ये अगर एंगल आर है आपका तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो कि जो आपका मछली रियली जहां पे था उसको हम डी बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते इसको हम लोग? रियल डेप्थ, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कहा था मछली का, और जहां पे उसको इमेज बनता हुआ दिख रहा है उसको मान लो डी डैश बोलते हैं। क्या बोलते इसको हम लोग? दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। क्या बोलना है इसको? तो डी डैश को बोला मैंने एपरेंट डेप्थ, जहां पे बनता हुआ उसको इमेज दिख रहा है बट एक्चुअली वहां पे अवेलेबल नहीं है। और डी को बोलते हैं कहां मछली रियलिटी में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल डेप्थ। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब अगर tan थीटा अप्लाई करोगे, बात समझो, दो ट्रायंगल को बाहर निकाल रहे हैं, बात समझना अच्छे से, सब बच्चे देखना, हम दोनों ट्रायंगल को बाहर निकल के समझा रहे हैं। ये एंगल आ रहा है, ये एक्स है और ये डी डैश है। कोई दिक्कत यहाँ पे? सेकेंड ट्रायंगल यहाँ बना रहे हैं आपके लिए, समझाने के लिए यहाँ बना रहे हैं। ये आपका ऐसे ही है, ये थोड़ा नीचे आ गया, ये रहा आई, ये आई हो गया, ये एक्स हो गया और डी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या तुम फील कर पा रहे हैं इन चीजों को? ये बड़ा ट्रायंगल है ना, ये फिर से बोलो, ये क्या बड़ा ट्रायंगल है? नेक्स्ट देखो, ये कौन सा? ये कौन सा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। अब इन दो ट्रायंगल है, बस आपको tan एंगल निकालना। आपको दो चीज बता चुके हम, शुरू से एक ही बात बताते हैं आपको, दोबारा हम बोलते रहे ताकि तुम कभी कंफ्यूज मत करो इसे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। बात समझो, अगर मैंने बोला कि बताओ sin 0 डिग्री का आंसर क्या होता है, तो बोलोगे 0, पहले पढ़ा चुके आपको। tan 0 डिग्री का आंसर कितना होता है? 0। मतलब एंगल बहुत छोटा हो तो उसका वैल्यू भी क्या होता है? अप्रॉक्स सेम होता है। क्या होता है आपका? तो बोलेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू sin थीटा एंड अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा। यस और नो? क्या लॉजिक क्लियर आपके लिए? देखो थीटा भी कितना है? 0 डिग्री। थीटा भी कितना है आपका? आंसर भी क्या है? क्या दोनों से एक हुआ कि नहीं हुआ? तो साइन का आंसर, tan का आंसर और आंसर दोनों का सेम, तो बोलेंगे tan थीटा sin थीटा अप्रॉक्स क्या हो गया? दोनों आपस में सेम हो गया। क्लियर? और इस बात का ध्यान रखना, यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत स्मॉल एंगल की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है? तो छोटे एंगल पे तीनों वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? सेम। तो ट्रायंगल नंबर 1 की बात करते हैं, ये एंड ये। बताओ tan i कितना होगा? बड़े एंगल बात करते हैं, tan का मतलब p/b, तो x/y कितना हो जाएगा? d। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो सब बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या tan i को ही sin i बोलते हैं क्या? देखो तो tan थीटा को sin थीटा बोल देंगे तो tan i क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स sin i, या फिर अप्रॉक्स किसके बराबर? i के बराबर। एक ही बात है ना, tan थीटा sin थीटा के बराबर है या थीटा के बराबर है, तो tan i भी किसके बराबर? sin i या फिर i के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ पे? सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल पे आ जाओ, कौन सा? ये कौन सा? ये बताओ तो tan d कितना, सॉरी tan r कितना? x/d डैश। क्या इसी को हम लोग अप्रॉक्स sin r बोल दे क्या, या इसी को अप्रॉक्स r बोल दे क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि जब भी क्वेश्चन लिखना है, रिफ्लेक्शन टर्म आ जाए, एक ही फॉर्मूला लाइफ टाइम काम आएगा। कौन सा फॉर्मूला? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। यस और नो? बताओ n1 sin i कितना, सब बच्चे बोलेंगे देखकर, sin i कितना है? x/d और x/, और sin r कितना है? x/। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? पुट कर दे। तो ये था आपका x/d इज इक्वल टू n2 इंटू x/d डैश। x नेक्स्ट को तो n2/n1 कितना हो गया? d डैश बाई d। अच्छा हम कर लीजिए का, तो क्या ऐसे बोल दे n2/n1 इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? जहां पे n2 कहने का मतलब होता है कहां से लाइट पहुंच रहा है, n1 का मतलब कहां से लाइट निकल रहा है। क्लियर ना? अगर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं आपको, ये रही चील, ये रही मछली। अब मान लो मछली आपका यहाँ पे है कि 10 मीटर के नीचे होगा और ये मान लो आपका है 50 मीटर ऊपर होगा। बात समझो यहाँ पे? बातें नहीं। ये मान लो एयर है तो n कितना हो गया इसका? 1। इसका कितना हो गया? n इक्वल टू 1.5, क्योंकि वाटर लेके चल रहे थे। तो मैंने बोला फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n2/n1
इज इक्वल टू डी डैश बाई, ठीक है। कौन किसको देख रहा है? मछली को देखना है, चील को, ठीक है। मान लो चील देख रहा है मछली को, तो ऑब्जेक्ट कौन बन गया? मछली। ऑब्जेक्ट कौन बना? लाइट कहां से निकलेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट से। तो जहां से लाइट निकलेगा वही बन जाएगा N1, और जहां लाइट पहुंचेगा वो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये आपका N1 है, ये आपका। तो बच्चे बोलो N2 कितना है? 1। N2 कितना है? N1 कितना है? D कितना? D कहां गया? D डैश निकालना है, D डैश निकालना है, और D कितना है? 10। तो बताओ D डैश कितना हो गया? 10 बाई 1.5 मीटर। 10 बाई, तो 10 बाई 1.5 मतलब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 बाई 15 है ना, 100 बाई, तो अप्रॉक्स इक्वल टू कितना? 6.66 अप्रॉक्स मीटर। मतलब 10 मीटर एग्जैक्टली नीचे था, मछली एक्चुअली इसको यहां दिख रहा है 6.66 मीटर पे दिख रहा है। बात समझना, ये आपका एपरेंट डेप्थ है, बट चील कहां है? अभी 50 मीटर ऊपर। तो बताओ यहाँ पे चील ने मछली को जब देखा तो ये डिस्टेंस तो 6.66 पहुंच गया हमारा। अब पूरा कितना ऊपर है? 50। तो पूरा कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? 56.66। तो बोलेंगे जो चील जो है मछली को देख रहा है कहां पे? 56.66 मीटर पे देख रहा है। ये द फाइनल आंसर। चमका? कोई दिक्कत किसी को? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा रेडी रहो। रिफ्रैक्शन में एक ही फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा? N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ये फॉर्मूला अभी से लेकर चाहे IIT क्वेश्चन हो, नीट क्वेश्चन हो, कैसे भी टाइप क्वेश्चन हो, हमेशा रेडी रहना। इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा, यही बेसिक काम आएगा। कैसे टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, उस क्वेश्चन को आसानी तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम इस फॉर्मूले का मतलब समझ गए हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन और भी करवाएंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। बट आप 1-2 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आज क्लास ओवर करेंगे। बस अब कॉपी कर लो पहले। कहां से? यहां से? क्या यहां से? ये पूरा बाल्टी है, पानी से भरा हुआ। किससे भरा हुआ है? मतलब बाल्टी ऐसे रखा हुआ है, बट उसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर दिखा रहे हैं बस। होमवर्क है ये। इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और ये आपका है 40 सेंटीमीटर। पानी का जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मछली यहां पे कहीं है, मछली आपका है 30 सेंटीमीटर पे। कितने पे? 30 पे। ये CF, ये मछली यहाँ पे एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम यहाँ पे हो, तुम्हें कितना इमेज देखेगा? टोटल इमेज निकालना है, और कहाँ कहाँ देखेगा वो भी निकालना है, उसका पोजीशन निकालना है, सब कुछ निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन कॉपी कर लो। नेक्स्ट, ये मान लो पानी से भरा बाल्टी ये भी है, बट नीचे आपका प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? बात नहीं, नीचे आपका प्लेन मिरर है, मछली यहां पे, ठीक है। चील यहां पे, चील को मछली को दिखना है, कितना इमेज देखेगा मछली का? उसको 2 इमेज। वेरी गुड। कौन सा? एक तो दिखेगा ऊपर की तरफ, यहां पे कहीं दिखेगा, एक इसका इमेज नीचे यहां कहीं बन रहा होगा। प्लेन मिरर है ना, तो मिरर इमेज कहां बनता है? यहां पे बनता है। तो मान लो पास जो यहाँ पे, मान लो पूरा आपका 30 सेंटीमीटर का ये सेटअप है, अब मछली नीचे आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर अकॉर्डिंग एग्जैक्टली इमेज कहां बनेगा? 10 सेंटीमीटर बनेगा। बट फिर से क्या देखेगा? कहीं ऊपर कहीं देखेगा, देखेगा ना। तो इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 1 यहां कहीं होगा, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना कितना होगा। क्लियर? तो जैसे मछली चील को देखेगा भागने का ट्राई करेगा। तो आपको ये बताना कि मछली को चील कहां पे नजर आ रही है। अगर मान लो ये इन वैल्यू आपका 1.5 है और ये आपका इन वैल्यू 1 है, मुझे बताओ मछली चील को देख रहा है, तो मछली को चील कहां नजर आएगी? बताओ जल्दी, फटाफट। 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, जल्दी करो। मछली को चील कहां नजर आ रही है? तो ऑब्जेक्ट कौन बन गया? ऑब्जेक्ट कौन बना इस बार? चील। ऑब्जेक्ट कौन बना? मछली देखेगा चील को, तो ऑब्जेक्ट चील बन गया ना।
तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, तो N1 क्या हो गया, ऊपर वाला N1, नीचे वाला कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया N1, ये हो गया आपका N2, करेक्ट। फॉर्मूला होता है N2 बाई N1 इक्वल टू D डैश बाई N2 कितना है, चेक करो कितना है आपका 1.5, N1 कितना है 1, D डैश निकालना है, और D एक्चुअली में कितना आपका है 100, कितना आपका है बताओ, D डैश कितना है 100 इंटू 1.5 कितना होगा 150, कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि मछली को चील थोड़ा और दूर नजर आ रही है, यहाँ पे कहीं होगा 150 मीटर। हाँ समझना अच्छे से, ये जो 150 आपका आंसर है ना, ये सेपरेशन से आंसर आपका है, कहां से, सेपरेशन से, बट मछली कितना नीचे 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 150 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 170 मीटर। तो मछली को चिल वो 170 मीटर ऊपर दिख रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली में कहां पे 100 मीटर, धोखा खा के मारा जाएगा।